ہر سال کی طرح آج بھی میرے چچا حج پر جانے سے پہلے ہمارے کچے گھر میں آئے اور ابا سے کہنے لگے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، میں حج پر جا رہا ہوں۔ ابا میرے سر پر پھٹی ہوئی چادر سیدھی کرتے ہوئے بولے، اللہ قبول کرے۔ ہمارے چچا شہر کے مشہور کاروباری شخصیت بن چکے تھے، جبکہ ابا کی کمر غربت اور 5 بیٹیوں کے بوجھ نے توڑ دی تھی۔ لیکن جیسے ہی چچا حج کر کے واپس آئے تو پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے ہوئے ابا کے پاؤں میں گر گئے، کیونکہ چچا نے طواف کے دوران ہمارا گھر کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور ان اینٹوں کی وجہ سے دیواروں میں جگہ جگہ پر دراڑیں تھیں، جن میں سے کبھی دھوپ جھانکتی، کبھی کبھار ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی اندر داخل ہوتی اور کبھی بارش کے دنوں میں پانی رس رس کر فرش پر چھوٹی چھوٹی ندیوں کی صورت میں بہنے لگتا۔ اماں کبھی تھک ہار کر کہتی تھی کہ یہ گھر بار میرے صبر کو آزماتا ہے، لیکن ان کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ہمارے صحن میں ایک نیم کا درخت تھا، جس کی جڑیں زمین میں کم اور ہمارے دلوں میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ درخت کے نیچے ہم بہنیں بیٹھ کر شام کو ابا کے لوٹنے کا انتظار کرتی تھی، اور جب بھی گھر لوٹتے تھے ان کے قدم لڑکھڑاہٹ صاف دکھائی دیتی تھی، اور غربت کی وجہ سے ان کی سانسیں ہر وقت الجھی رہتی تھی۔ ابا کی کمر واقعی ٹوٹ چکی تھی۔ 5 بیٹیوں کی ذمہ داری، مسلسل فکر اور اندر ہی اندر ان کو کمزور کرنے والے دکھوں نے ان کی کمر توڑ ڈالی تھی، اور وہ جب بھی چلتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پرانا دروازہ چرچرا رہا ہو۔ ان کے کندھے ہمیشہ جھکے رہتے تھے، جیسے ان کے کندھوں پر کوئی ایسا بوجھ لاد دیا گیا ہو جس نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہو۔ ہم 5 بہن، پانچوں کی پانچوں ایک دوسرے سے مختلف۔ اگر ہم پانچوں ایک ساتھ بیٹھ جاتی تو کوئی بھی ہماری پہچان نہیں کر پاتا تھا کہ ہمارا آپس میں بہنوں کا تعلق ہے۔ میری بڑی بہن زینب کو پڑھنے اور پھر پڑھ لکھ کر ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کا تمام شوق غربت کے نیچے دب کر رہ گئے تھے۔ 8ویں کلاس کی فیس نہ دے پانے کی صورت میں ابا نے ان کی کتابیں واپس رکھوا دی تھی۔ یہ زینب نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، وہ بس اپنی کتابوں کو سینے سے لگا کر خاموشی سے سو گئی۔ لیکن جب وہ اگلے دن صبح اٹھی تو وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے مسکرانے، چہچہانے میں فرق آ گیا تھا، جسے سب نے محسوس کیا تھا۔ سب اس کی پڑھائی کے سائے لگاؤ سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن سب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بے باس تھے۔ میری دوسری بہن عائشہ تھی، جو اس قدر خوبصورت تھی کہ گاؤں کی عورتیں اکثر اماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی تھی کہ اسے پردہ کرواؤ ورنہ نظر لگ جائے گی۔ اس کے لیے ایک دن ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکا اپنی دکان چلاتا تھا اور ان کی اچھی خاصی زمینیں بھی تھی، لیکن جب انہوں نے ہمارا کچا گھر دیکھا تو انہوں نے اسی دن ہی انکار کر دیا، اور ان کی جانب سے انکار کی وجہ ہم لوگ بخوبی جانتے تھے۔ تیسری میں خود تھی، یعنی ساجدہ۔ میں بولتی کم تھی، لیکن اپنے اندر میں بہت زیادہ غبار جمع کر کے رکھتی تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنے میں مشغول رہتی تھی۔ میں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھ لیا تھا کہ خواہشوں کو اپنے دل میں کیسے دفن کرتے ہیں۔ جب ابا ہر سال کہتے تھے کہ بیٹا اس سال نہیں ہو پایا تو میں مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ابا اپنی جانب سے ہماری خواہشات کو پورے کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں کبھی مزدوری ملتی تھی اور کبھی مزدوری نہ ملتی تھی۔ میری چوتھی بہن مریم تھی، جو بچپن سے ہی سلائی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتی تھی، لیکن جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو اماں کہتی تھی کچھ مت لینا، پہلے گھر کا راشن آ جائے پھر دیکھیں گے۔ لیکن ہر ماہ اس کی کمائی گھر کے راشن میں ہی لگ جاتی تھی۔ اگرچہ اسے غصہ بھی آتا تھا، لیکن پھر اماں اور ابا کی بے بسی کو محسوس کر کے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ احساس کرنے والی تھی اور اس کی عادت کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی بات پر رو پڑتی تھی۔ سب سے چھوٹی ہینا تھی، جو ابھی بچی تھی، لیکن وہ ہم سب بہنوں سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس نے خود کو ہی اس حال میں ڈال لیا تھا کہ اسے ابا کی غربت کی وجہ سے کبھی کوئی بھی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ وہ سارا دن خود کو کھیلنے میں مصروف رکھتی تھی۔ اگرچہ اس کی تمام سہیلیوں کے پاس اچھے برتن ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس کچے، وہ مٹی سے ہی برتن بنا کے ان کے ساتھ اپنے دل کو بہلا لیتی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہمارے چچا کا گھر تھا، جو ہر سال حج پر جاتے تھے۔ ہمارے گھر اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھار ہمیں روٹی ہی کھانے کے لیے میسر نہ ہوتی تھی، اور ہمارے چچا ہر سال جو ہی ذی الحج کا مہینہ آتا ان کے گھر میں رونق لگ جاتی تھی۔ پورے گاؤں میں صرف ان کا گھر تھا جہاں ہر سال رونق لگتی تھی کہ چچا حج پر جا رہے ہیں۔ نئی سفید ٹوپیاں، عطر کی شیشیاں اور مہمانوں کی آمد و رفت ہمیشہ کے لیے ان کا معمول تھی۔ پورے گاؤں کے لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیشہ اکڑ کر بیٹھتے تھے۔ ہر سال حج پر جانے سے پہلے وہ ابا سے ملنے کے لیے ہمارے گھر ضرور آتے تھے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر ابا سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ بہت کچھ لے کر آتے تھے، لیکن وہ ہم پر اس طرح اپنی دولت کی ڈاک بٹھاتے تھے کہ کچھ دن تو ان کا آنا ہی ہمارے ذہنوں سے نہ اترتا تھا۔ اس سال بھی وہ ہمارے گھر حج پر جانے سے پہلے ابا سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سفید کاٹن کے چمکتے کپڑوں میں ملبس تھے، جنہیں پوری زندگی ہم نے ابا کو ایک مرتبہ بھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، جو دیکھنے میں بہت اچھی خاصی مہنگی لگ رہی تھی، اور ان کے چہرے پر مصنوعی عاجزی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ملازم بھی تھا، جس کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کی ٹوکریاں تھیں، جو چچا اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ٹوکریاں ملازم ہم بہنوں کو پکڑا کر چلا گیا تھا۔ چچا نے گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔
शायद ये देखने के लिए कि हमारे घर में कुछ बदला है या सब कुछ वैसा ही वैसा है। उन्होंने अब्बा जान के कमरे में दाखिल होते ही कहा था कि भाई जान, मैं हज पर जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो चुकी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इनकी बात का अब्बा ने कोई भी जवाब ना दिया। बस अब्बा ने मेरे सर पर मौजूद फटी हुई चादर सीधी की थी और चचा के जाने से पहले बोले थे कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे। चचा ने एक लम्हे के लिए मेरी चादर को देखा था, लेकिन फिर चचा ने अपनी नज़रें चुरा ली थी। शायद इन्हें नज़र आ गया था कि इनके हज पर जाने से बेहतर है कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि अब्बा की गुर्बत का ये आलम था कि कभी हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होती थी और कभी तो हम इससे भी महरूम हो जाते थे। अगरचे चचा की ज़मीनें शुरू-शुरू में अब्बा के बराबर ही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ चचा मशहूर कारोबारी शख्सियत बन चुके थे। इनके पास दुकानें थी, गाड़ियाँ थी, असारो शौक भी था, लेकिन अब्बा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से खामोशी आई थी। गुर्बत के साथ साथ 5 बेटियों ने इनकी कमर तोड़ डाली थी, लेकिन इनकी गैरत को नहीं, हमने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी भी चचा के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा था। हत्ता कि अम्मा इनसे काफ़ी मर्तबा कह चुकी थी कि भाई है आपका, इससे कुछ मांग लेने में क्या हर्ज है। मगर अब्बा का हर बार एक ही जवाब होता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मैं मुश्किल वक्त में हाथ पिलाना सीखें। मैं चाहता हूं कि मुश्किल वक्त का भी मुकाबला खुद करना सीखें और कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, ताकि फिर इन्हें मांगने की आदत ना बढ़ जाए। चचा जब भी हर साल हज से लौटते थे, सबको अपने हज के किस्से सुनाते थे, तवाफ, सई, अरफात, मुज़दलिफ़ा, वो रोते हुए और खुद को अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा दिखाने की कोशिश करते हुए सबको सब कुछ तफसील से ही बयान करते। और हम हर साल सिर्फ यही सोचते रह जाते कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारे अब्बा को इससे क्यों नहीं नवाजा। क्या अल्लाह ताला हमारी अम्मा के सूखे हाथों की दुआ को नहीं सुनता? यहाँ बहनों के दबे हुए अवाबों की आवाज़ तक नहीं पहुँचती। चचा बज़ाहिर तो नेक दिखाई देते थे, लेकिन दर हकीकत इनके अंदर दौलत की फरावानी की वजह से गुरूर का अंसर कूट कूट कर बड़ा हुआ था। वो हर साल जब भी हज से वापस आते इनका रवैया पहले से तब्दील हो जाता था, क्यों वो कहते थे कि हज पर जाने की वजह से इनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस बार इनके साथ हज पर जाते ही वो होने वाला है जो इनको हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा, क्योंकि उन्होंने माजी में ऐसा कुछ किया था जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनका कोई भी हज कबूल ना किया था। ये बात इस वक्त की है जब बाबा की कमर भी सीधी हुआ करती थी और इनके पास भी इतनी ताकत थी कि वो अपनी आंखों में मौजूद सारे ख्वाबों को पूरा कर सके और हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे सके। गाँव में इस वक्त सबके घर ही कच्चे। अब्बा और चचा दोनों भाइयों ने एक ही थाली में खाया था, वह दोनों इकट्ठे ही पले बड़े थे। उन्होंने मिलकर एक ही ख्वाब देखा था। वो अपनी ज़िंदगी में इस कदर मेहनत करेंगे कि वो गुर्बत को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगियों में से निकाल देंगे और अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। चूँकि अब्बा उम्र में बड़े थे, इसलिए इनके जज्बात में चचा की निस्बत एक ठहराव था, लेकिन चचा छोटे होने की वजह से तेज़, चालाक और होशियार थे। वो लोगों को अपनी सही और गलत बात पर कायल कर लेते थे और अब्बा इनकी बातों पर एतमाद कर लेते थे। एक दिन जब शहर से एक नया ताजर गांव में आया था, जब इसने अनाज की खरीदो फरोख्त का जिक्र चलाया तो चचा की आंखें इसकी बात सुनकर ही चमक उठी थी। चचा ने अब्बा से मुखातब होते हुए जोर से कहा था कि भाई जान, हमें ये मौका किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। हम दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। आप गाँव में कारोबार के तमाम मामलात को संभाल लीजिएगा और मैं शहर के तमाम मामलात को संभाल लूँगा। अब्बा भी चचा की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। इनके पास इस वक्त ज़्यादा पैसे ना थे, लेकिन इनके पास अपने बाप की जानिब से मिलने वाली ज़मीन पड़ी थी। इसलिए चचा जान ने इन्हें मशवरा दिया था कि भाईजान, आप अपनी ज़मीन बैंक में गिरवी रखवा दें और फिर बैंक वालों से कर्जा ले लें। अब्बा ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन चचा ने इन पर दबाव डाला था, क्योंकि इनके पास भी इतना पैसा ना था कि वो अकेले कारोबार कर सके। चचा ने इन्हें समझाते हुए कहा था कि मेरी जान, ज़मीन को गिरवी रख दो, चंद माह बाद ही हम अमीर हो जाएंगे और बैंक से वो ज़मीन वापस ले लेंगे। अब्बा ने इनके दबाव में आकर ज़मीन को गिरवी रख दिया था। बैंक से मिलने वाले कागजात ये कहकर अपने पास संभाल लिए थे कि मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब्बा ने भी अपने भाई पर यकीन किया था कि कारोबार शुरू हुआ तो पहले ही माह कारोबार में से नफ़ा आया था, जिसकी वजह से अब्बा बेफिक्र हो गए थे। अगले माह इससे भी दुगना नफ़ा आया था। इन दिनों अब्बा के पाँव खुशी से ज़मीन पर ना लग रहे थे। चंद ही माह के बाद चचा ने शहर में नई दुकान खरीदी। अब्बा समझते रहे थे कि कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, मुनाफा भी हो रहा है, इसलिए सब ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चचा ने इन्हें हिसाब देना कम कर दिया। जब अब्बा इनसे वजह पूछते तो वो कह देते कि आजकल माल उधार पर जा रहा है, सही रेट पर नहीं बिक रहा, क्योंकि वो शहर में सब कुछ संभाल रहा और अब्बा गाँव में। इसलिए अब्बा ने इसकी हर छोटी बड़ी बात पर यह सोचकर यकीन कर लिया था कि मेरा भाई है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी मुझे धोखा देगा। लेकिन अब्बा की सोच गलत निकली थी। एक दिन अब्बा बगैर बताए शहर गए थे। जब अब्बा की दुकान पर नजर पड़ी तो अब्बा दंग रह गए, क्योंकि दुकान तो इनकी सोच से भी ज्यादा शानदार थी और इसमें मौजूद सामान अच्छा खासा महंगा और चमक रहा था। अब्बा ने वहीं पर बैठकर हिसाब लगाया तो अब्बा को मालूम हुआ था कि ये दुकान तो मेरी सोच से भी ज्यादा नफा दे रही है, लेकिन मेरा भाई तो मुझसे झूठ बोल रहा है। अब्बा ने एक मुलाजिम से पूछा था कि मेरा भाई कहाँ पर है।
तो इसने जो कुछ बताया था, इसे सुनते ही अब्बा के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल पड़ी थी, क्योंकि उस मुलाजिम ने बताया था कि वो तो किसी जगह पर नई ज़मीन खरीदने के लिए गया हुआ है, नई ज़मीन खरीदने। ये सुनते ही अब्बा के कदम लड़खड़ाते इसी शाम अब्बा ने सीधा चचा से सवाल किया था कि मुझे हिसाब दिखाओ। चचा ने पहले पहल तो बात टालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो गुस्से में आ गए थे कि भाईजान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अब्बा भाई का बरहम रखते हुए मोर्च हो गए थे, लेकिन चंद ही दिनों के बाद बात खुद ही सामने आ गई। वो ज़मीन के कागजात जिन पर अब्बा का हक था, वो चचा के नाम मुंतकिल हो चुके थे। जाली दस्तखत, जाली कागजात। जब अब्बा को इस सब के बारे में मालूम हुआ तो अब्बा ने चचा की आंखों में आंखें डालकर पूछा था कि ये सब क्या है। अब्बा की बात सुनकर चचा जोर जोर से हंस पड़े थे और उन्होंने हंसते हुए कहा था, ये कारोबार था भाई जान, जो समझदार होता है वही हमेशा जीता है। अब्बा को समझ लग चुकी थी कि इसका भाई बेईमान हो रहा है, इसलिए अब्बा ने इसे कहा था कि मेरी ज़मीन वापस कर दो और बाकी सब कुछ। लेकिन चचा ये भी मानने के लिए तैयार ना था। मजबूरन अब्बा ने पूरे गांव के बुजुर्गों की पंचायत बैठा दी ताकि वो लोग ही फैसला करें। लेकिन जब वो लोग इसे आए थे तो चचा ने इन्हें ज़मीन के जाली कागजात दिखाए थे। अब्बा ने तो ज़मीन के कागजात पर अंगूठा लगाते वक्त किसी को भी ये सोच के गवाह नहीं बनाया था कि अपने भाई है, धोखा नहीं देगा। लेकिन हमेशा इंसान को धोखा वहाँ से ही मिलता है जहाँ से इसे धोखा मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती, और अब्बा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पंचायत ने जब कागजात को देखा तो चचा ने इनसे बड़े ही सुकून के साथ कहा था कि ज़मीन तो मेरी अमानत थी और कारोबार के लिए मैंने खुद मेहनत की और नफ़ा कमाया। भाईजान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीक था, और मैं भाईजान को इसके हिस्से के पैसे दे चुका हूँ। वो झूठ बोल रहा था, ये अब्बा अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अब्बा ने खामोशी ये सोच कर ही एहतियात कर ली थी कि अल्लाह ताला खुद हिसाब ले लेगा। किसी ने अब्बा को अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन अब्बा ने ना में सर हिला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई और भाई में दुश्मनी और बढ़ जाए और फिर सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। अब्बा ने यह सोचकर खामोशी अख्तियार कर ली थी कि मेरे नसीब का जो रिज़्क होगा वो मुझे मिल जाएगा। इस दिन अब्बा खामोशी से हाली हाथ घर आ गए थे। अम्मा ने हाली हाथ घर आते हुए देखकर कहा था, आपने ये क्या कर दिया? वो सब कुछ हमारा था। अब्बा ने आसमान की जानब हाथ उठाते हुए कहा, अगर ये सब कुछ हमारा होता तो कोई भी हमसे ना छीन पाता। दर हकीकत अब्बा एक सादा और सब पर जल्द ही इत्मीनान करने वाले शख्स थे, लेकिन इन्हें अपने भाई से धोखे की उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। देखते ही देखते चचा शहर के बड़े ताजिर बन गए थे। इनका कारोबार न सिर्फ एक जगह पर था, बल्कि उन्होंने शहर के मुख्तलिफ कोनों में कारोबार को फैला दिया था, और अब्बा मजदूरी करने लग गए थे ताकि अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा छोटे थे और तमाम फिक्रों से आज़ाद थे, लेकिन अम्मा हर वक्त सर पकड़ कर बैठी रहती थी, क्योंकि देखते ही देखते मुश्किलों ने अपना रुख इनकी जानब कर लिया था। लोग अब्बा को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि अपने भाई से अदालत के ज़रिए अपना हिस्सा लो, लेकिन अब्बा इनसे कहते थे कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, वो खुद ही सबसे हिसाब लेगा। साल गुजरते गए, लेकिन चचा ने कभी भी पलटकर अब्बा की जानब ना देखा। मगर अब्बा ने कभी भी चचा के दिल में नफरत ना रखी थी। वो हर नमाज में रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह, अगर इसने मेरा हक खाया है तो इंसाफ करना, मैं तुम्हारे इंसाफ का हमेशा मुंतज़िर रहूंगा। वक्त गुजरता गया। हम सब ने जूं ही जवानी के दहलीज में कदम रखा तो अब्बा को हमारी शादियों की फिक्र सताने लगी। लेकिन इनके पास इतना पैसा ही ना था कि हमें ब्याह सके। मजदूरी से जो भी पैसा मिलता था, इससे सिर्फ घर का ही दाना पानी हो पाता था। चचा के धोखे देने के बाद से अब्बा मुसलसल फिक्र और परेशानियों की वजह से कमज़ोर होते गए थे, लेकिन चचा ने कभी भी मुड़कर इनके जानब ना देखा था। अब्बा हर सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद देर तक जय नमाज पर बैठे रहते थे। वो तस्बीह के दाने दाने आहिस्ता आहिस्ता सरकते थे और अल्लाह ताला से इसके इंसाफ की दुआ मांगते थे। ज़ैनब को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अब्बा की गुर्बत की वजह से इसे अपना शौक अपने अंदर दफन करना पड़ा था। ज़ैनब जब भी किताब खोल कर पढ़ती थी तो वह चंद ही घंटों में सब कुछ अच्छी तरह से याद कर लेती थी, जो मुझे याद करने काफ़ी दिन लग जाते थे। इसके उस्ताद भी इसकी जहानत को देखकर कहते थे कि ये लड़की बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, लेकिन आगे जाने के लिए और पढ़ाई को जारी रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो हमारे पास ना थे। एक दिन ज़ैनब को स्कूल में से एक पर्ची देकर निकाल दिया गया था। वो पर्ची फीस की ही थी। ज़ैनब ने घर आकर रोते हुए वो पर्ची अम्मा को दी थी, और अम्मा ने जब वो पर्ची अब्बा को पेश की थी तो अपनी जेब में हाथ डाला था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथ निकाल लिया था, क्योंकि जेब तो खाली थी। अम्मा ने काफ़ी जगहों से उधार मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उधार देने के लिए ना माना था, क्योंकि अम्मा ने पहले ही काफ़ी लोगों से उधार ले रखा था और इन लोगों को पैसे वापस ना किए थे, इसलिए कोई भी अम्मा पर एतबार करने के लिए तैयार ना हुआ था। फिर मजबूरन ज़ैनब ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अम्मा से कहा था,
कि अम्मा मैं पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती। अम्मा ने जब इससे वजह पूछी तो इसने कहा कि बस अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपके साथ ही काम में हाथ बटाऊंगी। अम्मा ने इसकी बात सुनकर खामोशी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि वो ज़ैनब के दिमाग में जो कुछ चल रहा था इससे वाकिफ थी। अगले दिन ज़ैनब ने अपनी वर्दी तय करके अलमारी में रख दी थी। इसने किताबों को चूमते हुए बेच दिया था और इसने वर्ची रहने का रूह तैयार किया, जहाँ इसे काम करना बिल्कुल भी पसंद न था, लेकिन इसने अपने दिल पर पत्थर रखकर काम करना शुरू कर दिया। साजिदा का भी रिश्ता गुर्बत की वजह से ही टूट गया था, हत्ता कि वो अपने रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। गुर्बत इंसान से कभी कभी इसका सब कुछ छीन लेती है, और इसने हम बहनों से भी हमारी आंखों के ख्वाब, हमारा रोशन मुस्तकबिल छीन लिया था। घर के खराब हालात देखकर मरियम ने छोटी सी उम्र से हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए थे। इसने बगैर किसी से पूछे और बगैर किसी से सीखे सिलाई करना शुरू कर दी थी। दरअसल इसकी दोस्त की अम्मा सिलाई करती थी, इसलिए वो इसके घर जाके चुपके से ही देख देख कर सिलाई करना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसका काम सबको पसंद आने लगा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे गाँव में से बल्कि दूर दराज के भी गाँव से ऑर्डर आने लगे थे। कभी कभार तो हमारे सो जाने के बाद भी सिलाई करती रहती थी ताकि अम्मा और अब्बा की मदद कर सके। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो वो मेरी नज़र सहन में बैठे हुए रोते हुए अब्बा पर पड़ी थी। वो रो भी रहे थे और अल्लाह से मुखातिब होकर बातें भी कर रहे थे। या अल्लाह, अगरचे मेरी बेटियां मुझसे कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन फिर भी मुझे इस कदर रिज़्क से ज़रूर नवाज कि मैं इनकी आंखों में मौजूद अब अब्बा को उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। अब्बा को रोते हुए देखकर मेरी आंखों में से भी आंसू निकल आए थे, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र ज़ैनब के सिवा किसी से भी नहीं किया था। जब इसे मैंने बताया था वो भी रोना शुरू हो चुकी थी। इस दिन हम दोनों मिलकर इस कदर रोई थी कि हमारे दिलों का गुबार काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब्बा को अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से एहसास था, लेकिन वो भी हालात के हाथों मजबूर थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अम्मा ने काफ़ी मरतबा इनसे कहा था कि वो अपने भाई से मदद मांग ले, लेकिन अब्बा इनसे मदद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर इन्हें अपना सर झुका कर चलना पड़े। इनकी सोच ये थी कि इंसान कम खा ले, लेकिन किसी के भी सामने हाथ ना फैलाए, चाहे भूख से ही क्यों ना मर जाए। देखते देखते चचा का कारोबार इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने गाँव में एक ऐसा घर बनवाया था जैसा किसी का भी ना था, और अपनी गाड़ियों को रोजाना इस तरह से बदलते थे कि जैसे हम लोग कपड़े बदलते थे। वो हर साल ही हज करने के लिए जाते थे। चचा के 3 बेटे थे जो इनकी ही तरह गुरूर में डूबे हुए थे। जब इंसान के पास दौलत आती है तो इंसान में खुद ब खुद ही गुरूर आ जाता है। चचा के घर में हर साल हज की तैयारी ऐसे होती थी जैसे कोई ताज पोशी के लिए जा रहा हो। जब चचा हज से वापस घर आते तो वो लोगों को अपने हज की तस्वीरें अकड़ अकड़ कर दिखाते थे। वो अपनी तस्वीरें चचा के लिए इबादत से ज्यादा शनाख्त बन चुकी थी। गांव के लोग जब भी इनसे मिलने के लिए इनके घर जाते तो वो हर एक को अकड़ अकड़ कर अपनी तस्वीरें दिखाते थे। लोग इनकी तस्वीरें देख देख कर माशाल्लाह कहते थे, तो चचा के चेहरे पर इस वक्त वह मुस्कुराहट आ जाती थी जो किसी फातिहा के चेहरे पर होती है। इस साल भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। वो हज के लिए जा रहे थे, लेकिन इनकी आंखों में इस दफ़ा गुरूर बहुत ज़्यादा था। वो इस तरह गुरूर से अकड़े हुए थे जैसे वो बहुत ताकतवर इंसान हो जिन्हें कोई भी ना हरा सकता हो। हज पर जाने से पहले चचा ने घर में छोटा सा इज्तिमा करवाया था। दुआएं, नाते, तस्वीरें और लोगों की अच्छी खासी तादाद जो हमारे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चचा के लिहाज से कम थी। इस वक्त चचा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। नाते सुनकर इनके एक दोस्त ने इनसे पूछा था कि हाजी साहब, इंसान में आजिज़ी कैसे आ जाती है। उन्होंने रोते हुए जवाब दिया था कि अल्लाह ताला के घर जाकर इंसान कुछ भी नहीं रहता। ये कहते हुए उन्होंने लाशौरी तौर पर अपनी गर्दन सीधी की थी। हर साल की तरह इस साल भी चचा हज पर जाने से पहले हमारे घर आए थे। हम सब अच्छी तरह से जानते थे कि वह सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। चचा ने तस्बीह को अपनी उंगलियों से में घुमाते हुए अब्बा से मुखातिब होते हुए कहा था कि मैं भाईजान, अगर मुझसे कभी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब्बा ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह कबूल करे, और चचा वहाँ से चले गए। इस वक्त चचा के चेहरे पर ना नदामत थी और ना ही हो। अगर चचा को अपने किए पर शर्मिंदगी होती तो अब्बा से पूछते कि भाई हालात कैसे हैं, लेकिन खामोशी से चले गए थे। चचा को यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला के खास बंदों में से हैं, क्योंकि वो हर साल इनके घर का हज करने के लिए जाते थे और अल्लाह ताला हर साल इन्हें अपने घर बुलाता था। जब चचा हज से वापस आते थे तो इनके अंदर मज़ीद तब्दील हो गया होता था। वो महफ़िलों में बैठते, मोबाइल फ़ोन खोलते और हर एक को अपनी तस्वीरें दिखाते थे। कुछ लोग वाक़ई इनसे मुतासर होते, कुछ लोग खामोश रहते और कुछ लोग इनकी चापलूसी करते, लेकिन चचा जान इस कदर चालाक थे कि सब लोगों की चापलूसियों को समझते थे, लेकिन फिर भी अकड़ अकड़ कर लोगों से बातें करते थे। वो ये भूल चुके थे कि इंसान की अकड़ अल्लाह ताला की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा हज से वापसी पर जब अब्बा इनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अब्बा को मुखातब करते हुए कहा था कि भाईजान, आपने तस्वीरें नहीं देखी? तो अब्बा ने इन्हें जवाब दिया था कि मैंने देख ली हैं। चचा लोगों को बार बार बताते थे कि इंसान को हज तब्दील करके रख देता है, लेकिन हज ने चचा को बिल्कुल भी ना बदला था। चचा के अंदर कहीं पर एक आवाज़ थी, लेकिन चचा इस आवाज़ को दबाना चाहते थे। वो आवाज़
वो आवाज़ इन्हें कभी रात को सोते वक्त आती है और कभी तवाफ का जिक्र करते वक्त, और आवाज़ इन्हें सुनाई देती थी। और कभी अब्बा का चेहरा देखकर अपने अंदर की आवाज़ को दबाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। वो हर बार अब्बा से माफ़ी मांगते थे, लेकिन इनकी माफ़ी दर हकीकत अंदर से खोखली होती थी। लेकिन इस दफ़ा हज के दौरान चचा के साथ खाना काबा का तवाफ करते वक्त कुछ अजीब हुआ था। इस दिन खाना काबा में मामूल से ज़्यादा रश था। सूरज अपने अरूज पर था। इस दिन इस कदर गर्मी थी कि सब लोग पसीने से शराबोर थे, लेकिन फिर भी सब तवाफ जोशो खरोश के साथ कर रहे थे और हर इंसान जल्द अज जल्द अपने तवाफ में मशगूल था। चचा भी इन लोगों के हजूम में शामिल था। सफ़ेद हरा में मलबूस, गर्दन सीधी और चाल में इत्मीनान था। वो इतने लोगों के हजूम में भी सब लोग अलग ही दिखाई दे रहे थे। इन्होंने खाना का वक्त देते हुए सोचा था कि ये मेरा कितना हज है, पांचवा ये छठा। इन्हें सही तरह से याद ना था। जब पहली बार खाना काबा इनके सामने आया था तो इनकी आंखों में वही मानूस नमी आ गई थी जो हर साल आती थी। उन्होंने दुआ मांगने के लिए अपने हाथ उठाए और इन्होंने दिल की गहराइयों से अपनी मज़ीद तरक्की के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी। लब्बैक की आवाज़ें, दुआ के सरगोश कदमों की मुसलसल चाप। चचा ने भी दुआ मांगने के बाद तवाफ़ करना शुरू कर दिया था। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। हर चक्कर के साथ 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 लोगों का हजूम बढ़ता गया था। जब वो चौथा चक्कर लगा रहे थे, इन्हें एक जोरदार धक्का लगा था और चकराते हुए गड़बड़ाए थे। एक बूढ़े फ़कीर ने आगे बढ़कर इन्हें उठाने की कोशिश की थी। इस फ़कीर की दाढ़ी सफ़ेद और चेहरे झुर्रियों से भरा हुआ था। इस बूढ़े शख्स की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक थी जिसने चचा को मुकम्मल तौर पर इनकी जानिब मुतवज्जो कर दिया था। इस फिक्र ने चचा को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन चचा ने इससे कहा था, मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। इनकी बात सुनकर वो फकीर इंसान मुस्कुरा उठा था। इसने जो कुछ चचा से कहा था, इसे सुनते ही चचा के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल पड़ी थी, क्योंकि इस फकीर शख्स ने चचा से वो कुछ कहा था जो चचा भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं भूल पा रहे थे। इस फकीर ने चचा की आंखों में देखते हुए कहा था, अपने भाई का हक वापस कर दो, फिर ही अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करेगा। चचा ने इससे पूछने की कोशिश की थी कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब किसने बताया। तो वो फकीर हंस पड़ा था और इसने हंसते हुए कहा था कि मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। चचा को इस फकीर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि उन्होंने इस शख्स को पहले कभी भी नहीं देखा हुआ था और ना ही वो इस शख्स को जानते थे। लेकिन वो तो चचा की वो बात जानते थे जिसे गांव के अलावा कोई भी नहीं जानता था। चचा ने हक्का बक्का इस आदमी की जानिब देखना शुरू कर दिया था। चचा को इस आदमी में से अपने बाप की झलक दिखाई दी थी। चचा की आंखों के सामने वो सब कुछ घूमने लगा था जो उन्होंने अब्बा के साथ किया था। पुरानी यादों को याद करते हुए चचा का सर एकदम घूमने लगा था और इन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। इन्हें शर्मिंदा होते देख कर वो फ़कीर आदमी चचा का हाथ छोड़कर हजूम में गायब हो गया। चचा ने खड़े होकर इसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो शख्स फिर चचा को कहीं पर भी दिखाई ना दिया। वो शख्स चचा को आईना दिखाकर गायब हो चुका था। चचा ने इसे ढूंढने के लिए इसे आवाज़ भी दी थी, लेकिन लोगों के हजूम में इनकी आवाज़ दब कर रह गई थी। वे बस इससे चचा की आंखों में से आंसू निकल पड़े थे। चचा ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया था। लोग इन्हें इस तरह नीचे बैठा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इनको संभालने के लिए आगे बढ़े थे। कोई कह रहा था हाजी साहब को चक्कर आ गए हैं, कोई कह रहा था कि वो जज्बाती हो गए, लेकिन हकीकत ये थी कि इनका ज़मीर जाग चुका था। और जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो इंसान को अपनी सारी पिछली गलतियां याद आ जाती हैं, और चचा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इन्हें वो सब कुछ एक एक करके याद आने लगा था जो उन्होंने अब्बा के साथ किया था। हज से वापसी पर चचा के इस्तकबाल की तैयारियां बिल्कुल वही थी जो हर साल होती थी, लेकिन चचा बिल्कुल भी वैसा ना रहा था जैसे वो था, क्योंकि इनका ज़मीर जाग चुका था जो कब से सो रहा था। एयरपोर्ट जब इनके बेटे इनको लेने के लिए गए थे तो वो बिल्कुल ही खामोश थे। वो पहले की तरह किसी से भी जोश खरोश के साथ ना मिले। इनको इस तरह देखकर लोगों ने समझा था कि इन्हें कुछ हो गया है, लेकिन दरअसल इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ही ठीक थे। चचा बार बार ज़ेरेला पुकार रहे थे कि हक हक हक। इनको इस तरह करते हुए देखकर इनके बेटों ने समझा था कि शायद किसी चीज़ ने चचा को दिमाग पर असर कर दिया, लेकिन दर हकीकत कोई भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है। घर पहुंचते ही चचा ने अपने जूते एक जानब रखे थे और वो सहन के बीचों बीच जाकर बैठ गए थे। चची ने इन्हें सहन के बीचों बीच इस तरह से बैठे हुए देखकर पूछा था कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। चचा ने चाची की आवाज़ सुनकर अपना चेहरा जो उन्होंने झुकाया हुआ था ऊपर की जानब उठाया था। इस वक्त इनकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख थी और इनके चेहरे की रंगत जर्द हो गई थी। उन्होंने चची को देखकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, मैंने इसे देखा था, वो तवाफ में। चची ने घबराते हुए पूछा था कि आपने किसको देखा था, लेकिन चचा जवाब दिए हुए अपने कमरे में चले गए थे और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। आधी रात को वो अचानक चिल्लाते हुए पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे थे और उन्होंने एक ज़ोरदार चीख मारते हुए कहा, नहीं, ये सब मेरा नहीं था,
یہ سب میرا بالکل بھی نہیں تھا۔ گھر والے اچانک ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے دوسرے دروازے کو کھولا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے تھے جہاں پر چچا جان سوئے ہوئے تھے۔ چچی نے چچا کو ہوش دلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، یہ سب میرا نہیں ہے، یہ سب میرا نہیں ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ ان کے بیٹے ایمرجنسی میں انہیں اسپتال لے کر بھاگے تھے لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ گھر والوں نے ان کا جتنا بھی علاج کروانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی تھی۔ روزانہ رات کو چلانا ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ پہلے سو جاتے تھے اور پھر آدھی رات کو اچانک اٹھ بیٹھتے تھے اور پورے صحن میں چلا کر کہتے تھے لبیک لبیک۔ اس وقت ان کے ہاتھ اس طرح سے اٹھے ہوتے تھے جیسے وہ حجر اسود کی جانب بڑھ رہے ہوں۔ وہ خود کو گھر آنے کے باوجود حنقابہ میں ہی رہتے ہوئے تصور کر رہے تھے۔ ایک رات وہ دیوار پر اندھیرے میں چڑھ گئے تھے اور گر پڑے تھے۔ گھر والوں کے لیے انہیں اس حالت میں دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ گھر کے بچے چچا جان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے چچا جان کا علاج اور ان پر تجویز بھی کروائے تھے لیکن چچا جان کی حالت میں کوئی بھی افاقہ نہ آیا۔ گھر میں چچا کی حالت کی وجہ سے چچی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ ان کے لیے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا اور ان کو چچا کی بگڑی ہوئی حالت کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچا کی حالت میں بہتری آنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھار چچا چچی سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ میں نے سب کچھ لٹا دینا ہے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں نے سب کچھ لٹا دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ چچا کی جب بھی آئینے پر نظر پڑتی تو چیخ اٹھتے تھے۔ جب ابا کو ان کی اس حالت کی اطلاع ملی تو ابا نے ان سے ملنے کے لیے گئے لیکن چچا کی حالت اس دن بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے ان کے بیٹوں نے انہیں بے ہوشی کی دوا کھلا کر سلا دیا تھا اور ابا چچا سے نہ مل پائے تھے۔ جب چچا کے بیٹے انہیں علاج کروانے کے لیے دوسرے ملک لے کر گئے تھے تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کوئی اور بیماری نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف کسی بات کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود کم ہو جائے گا۔ انہوں نے چچا کو کھلانے کے لیے اور سکون پہنچانے کے لیے کچھ ادویات دی تھی جن کے استعمال کی وجہ سے چچا کی حالت اچھی خاصی بہتر ہو چکی تھی۔ جب چچا بیرون ملک سے واپس آئے تھے تو انہوں نے چچی سے کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ چچی نے ان کی بات سن کر سر پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ بھی ساری حقیقت سے آگاہ تھی، اس لیے انہوں نے چچا سے پوچھا تھا کیوں؟ چچا نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کے لیے آئے۔ محلے والے کو جب چچا کی اس حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ زیادہ حج کرنے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو چکی ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان پر کالا جادو کروایا ہے، لیکن در حقیقت ان کا وہ ضمیر جاگ چکا تھا جو انہوں نے برسوں سے سلایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن ابھی صبح صحیح طرح ہی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر شور اٹھا تھا کہ ایک دم ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور سب کے سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا تو باہر موجود آدمی پر نظر پڑتے ہی میرا دل دک سا رہ گیا تھا کیونکہ وہاں پر چچا موجود تھا لیکن ان کی حالت پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ نہ ہی انہوں نے سفید کاٹن کا لباس پہنا ہوتا نہ ہی ان کے ہاتھوں میں معمول کے مطابق تسبیح تھی۔ اس وقت بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ ابا نے منہ دھوتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون ہے؟ تب میں نے جواب دیا تھا کہ چچا۔ ابا کو پہلے تو میری بات پر یقین آیا کیونکہ چچا کبھی بھی اس وقت ہمارے گھر نہ آتے تھے۔ جو ہی ابا چل کر دروازے کے پاس آئے تو چچا اچانک ہی ان کے قدموں میں گر پڑے تھے۔ چچا کو اس طرح ابا کے قدموں میں گرے دیکھ کر ہم سب ساکت رہ گئے تھے۔ چچا کی حالت کو دیکھ کر ہمیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے چچا کو حقیقت میں کچھ ہو گیا ہو۔ چچا نے ابا کے جوتے پکڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے اس وقت بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ چچا کو اس طرح ابا کے قدموں میں گر کر معافی مانگتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک اماں نے ہمیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ابا کے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر ہم سب کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ابا اپنے قدم پیچھے کی جانب ہٹانا چاہتے تھے لیکن چچا نے انہیں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ چچا نے مزید یہ کہا تھا کہ میں جھوٹا تھا، میں چور تھا، میں نے آپ کا حق کھایا اور میں نے اپنے بھائی کو ہی دھوکہ دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے یہ سب کچھ پیسوں کی لالچ میں کیا تھا، میں پیسوں کی لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی بھی، وہ جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، چچی اور اس کے بیٹے بھی چچا کو ڈھونڈتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ جب انہوں نے چچا کے منہ سے سچائی سنی تو وہ بھی دنگ رہ گئے تھے۔ چچا جان نے چچی کے سوائے کسی کو بھی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ چچا نے بار بار سچ بولنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کس طرح ابا کو دھوکہ دیا تھا اور کس نے ابا کی زمین کو لوٹا تھا۔ ہم بہنیں اس وقت بالکل ہی خاموشی سے رو رہی تھی۔ زینب کے ہاتھوں نے اچانک اس دن کو یاد کرتے ہوئے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پڑھائی کو خیر آباد کہا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے خوابوں کو اپنے ہاتھ سے نوچ ڈالا تھا۔ چچا نے ہم بہنوں کو سوچ میں
रोते हुए देखकर कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की महरूमियाँ मेरी ही वजह से थी। अब्बा इस वक्त बिल्कुल खामोश थे और बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब्बा को सोच में डूबे हुए देखकर चचा ने अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा था, मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर देना चाहता हूँ, ज़मीन, पैसे, सब कुछ वापस देना चाहता हूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब्बा ने इनकी बात सुनने के बाद कोई भी जवाब ना दिया, लेकिन वो किसी सोच में गुम थे। अम्मा ने अब्बा को सोच में डूबे हुए देखकर इन्हें हिलाया था। इस वक्त अब्बा के आंसू की रवानी में मज़ीद इजाफा हो गया था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अब्बा ने चचा से मुखातिब होते हुए कहा था, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। मुझे मेरे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे मेरी बेटियों का नसीब का रिज़्क हर हालत में देगा। चचा अब्बा की बात सुनकर उठ खड़े हुए थे और उन्होंने अब्बा के हाथों को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा था, तो फिर मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे सुकून हासिल नहीं होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा हिस्सा वापस कर दूंगा। अब्बा ने चचा की बात सुनने के बाद अपने हाथों को इनके हाथों में से निकालते हुए कहा था, मेरा माफ़ी पर कोई इख्तियार नहीं, मैं पहले भी यही चाहता था कि सबको सच मालूम हो जाए और आज भी तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सबको सच बताओ, ताकि सबको सच मालूम हो जाए कि वो ज़मीन मेरी ही थी और मैंने ही तुम्हें अपने अंगूठे लगवा कर दिए थे ताकि तुम इसे गिरवी रखवा सको। चचा अब्बा की बात सुनकर मानने के लिए तैयार हो गए थे। वो बस यही चाहते थे कि अब्बा इन्हें माफ़ कर दें, लेकिन अब्बा ने चचा को बिना कुछ जवाब दिए कमरे का रुख अख्तियार किया और उन्होंने कमरे में दाखिल होने से पहले कहा था कि कमरे में कोई भी दाखिल होने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से मजबूरन चचा के बेटे से लेकर चले गए थे। चंद ही लम्हों में ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि चचा ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हकीकत सबके सामने आ चुकी थी इसलिए हकीकत को कोई भी नहीं जुटला पाया था। अगले दिन चचा ने फिर हमारे घर का रुख किया था, लेकिन इस दफ़ा इनके हाथों में फाइलें थी जिसमें वो सारे कागजात जमा करके ले आए थे। उन्होंने वो सब कुछ अब्बा के सामने रखते हुए कहा था कि भाईजान ये सब आपका है, आपका था। अब्बा ने चचा की बात सुनने के बाद एक नज़र इन कागजात पर डाली थी और दूसरी नज़र आसमान की जानब उठाई थी, क्योंकि इनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात थी और अल्लाह ताला ने इनको इंसाफ दिलवाया था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अब्बा ने चाचा से मुखातिब होते हुए कहा था कि माफ़ी मैं नहीं दे सकता, माफ़ी तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात देगी। अब्बा की बात सुनकर चचा के हाथ कांपने लगे थे। भाई मैंने सब कुछ वापस कर दिया, सब कुछ मान लिया, अब तो तुम मुझे माफ़ कर दो। अब्बा ने इसकी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली थी और कहा था कि मेरा हक वापस करना तुम्हारा फर्ज था और एहसान नहीं। अब्बा ने वो कागजात उठाए थे और वकील के पास चला गया था। चंद ही दिनों के बाद वह ज़मीन दर हकीकत हमारे पास आ गई थी जिस पर अब्बा का हक था। अब्बा ने ज़मीन पर मेहनत करना शुरू कर दी थी और अब्बा की मेहनत अल्लाह ताला ने इनकी पहली फसल इस कदर अच्छी तैयार की थी, जो भी देखता था माशाल्लाह कहे बिना नहीं जाता था। इस फसल से अब्बा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, जिससे वो घर के हालात चंद ही दिनों में बदल गए थे। हमारे घर के हालात तो बेहतर हो चुके थे, लेकिन दूसरी जानब चचा ना संभल पाया था, क्योंकि अब्बा ने इन्हें माफ़ नहीं किया था। चचा की बेईमानी और धोखाधड़ी की वजह से अब्बा और हमें इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जिसकी हद नहीं थी। हमारा बचपन महरूमियत से गुजरा था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चचा की ज़ात थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चचा की जहनी हालत बिगड़ती चली गई। वो सारे दिन बोलते और माफ़ी मांगते रहते, अगरचे इनके सामने कोई भी मौजूद ना होता था। एक दिन अब्बा ने हमें अपने पास बिठाते हुए कहा था कि अगर मैं इसे इस दिन माफ़ कर देता तो मैं तुम लोगों को कभी भी सच ना सिखा पाता। मैंने तो इसे इसी दिन ही माफ़ कर दिया जिस दिन इसने पंचायत में मुझे झूठा साबित किया था, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पर यकीन था कि वो मेरी बेटियों के नसीब का रिज़्क मुझे देगा। जो कुछ तुम लोगों के नसीब में था तुम्हें मिला था। मैंने तुम लोगों की ज़रूरियात को अपनी जानब से पूरा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर सका इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब्बा के बात सुनकर हम सब रो पड़ी थी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमें खबर मसूल हुई थी कि चचा को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने रात के अंधेरे में ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से चची को मारने की कोशिश की थी। अब्बा को जब हम लोगों ने चचा की सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह ताला इस पर रहम करे और इसे सेहतमंद करे, क्योंकि बाप जिस कदर भी बूढ़ा हो जाए फिर भी इसके बच्चों के इसकी ज़रूरत रहती है। अगरचे चचा के बेटे नौजवान और अपने अपने कदमों पर खड़े थे, लेकिन फिर भी इनको इनके बाप की ज़रूरत थी, क्योंकि सियाने कहते हैं कि अगर बाप की जूती भी दरवाजे पर पड़ी हो तो अंदर रहने वाले को एक अलग ही किस्म का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। वक्त गुजरता गया था, अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के दिल पर लगे ज़ख्म हरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका घाव कभी नहीं बढ़ता। अगरचे चचा ने अब्बा को इसका हक दे दिया था, लेकिन फिर भी अब्बा ने चचा को माफ़ नहीं किया था, क्योंकि चचा की गलती बहुत बड़ी थी। उन्होंने हमें हमारे इस हक से दूर रखा था जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने चचा की नाइंसाफ़ी की वजह से एक एक चीज़ को तरस गए थे, तरस कर ज़िंदगी गुजारी थी। अब्बा के फ़ैसले ने हमारी ज़िंदगी में कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया था, हमारे सारे रिश्तों को सीधा कर दिया था जो पैसा न होने की वजह से बंद पड़े हुए थे।
साल गुजरने के बाद भी हमारा घर वही कच्चा ही रहा था, लेकिन इसकी दीवारों में से मायूसी गायब हो चुकी थी और हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने की वजह से तरसना ना पड़ा था। ज़ैनब ने अब्बा के कहने पर अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि वो हम सब बहनें अपने अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं और कभी भी ज़रूरियात और मुश्किलात वक्त में दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि मरियम को सिलाई सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए अब्बा चाहते थे कि इसे प्रोफेशनल लेवल पर सिलाई सिखाए और बड़े पैमाने पर अपने कपड़ों का कारोबार शुरू करे। इसलिए वह चंद साल सीख लेने के लिए इस्लामाबाद चली गई थी। जब वो वहाँ से वापस आई तो अब्बा इसे इसके कदमों पर खड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि वो जिस तरह चाहते थे इनकी सब बेटियां अपने कदमों पर खड़ी हो जाए इसी तरह वो हो चुकी थी और बाकी हम सब अपनी पढ़ाई में मशगूल थी। जब ज़ैनब ने अपना बुटीक बना लिया था तो अब्बा ने इसकी मर्जी से इसका रिश्ता अहमद भाई के साथ कर दिया था, जो हमारे दूर परे के रिश्तेदार थे। अहमद भाई आर्मी में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे और बहुत ही ईमानदार शख्स थे। इनकी ईमानदारी को देखते ही अब्बा ने इन्हें ज़ैनब के लिए मुंतखब किया था। अब्बा ने हमें भी इस बात से खुली इजाज़त दी थी कि हम जिसके साथ शादी करना चाहते हैं इसके साथ शादी कर सकती हैं। वक्त गुजरता गया था। एक दिन अब्बा ऐसे सोए थे कि फिर ना उठ सके। हमने इन्हें इनकी वसीयत के ही मुताबिक अपनी ज़मीन में मौजूद मस्जिद के किनारे पर दफन किया था, क्योंकि मस्जिद के साथ दफन होना इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और हमने इनके ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन्हें मस्जिद के साथ ही दफन किया था। क्योंकि इस वक्त हम सब अपने अपने घरों की हो चुकी थी, इसलिए ज़ैनब ने अम्मा को तन्हाई के ख्याल से अपने साथ रखने की पेशकश की थी। अम्मा ने कुछ दिन सोच समझने के बाद मान लिया था और अम्मा ने ज़ैनब के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। सारा सारा दिन अम्मा ज़ैनब के बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती थी और कभी कभार हमारे घर भी चक्कर लगा लेती थी। जिस बहन को भी अम्मा की याद आती थी अम्मा के अपने साथ ले जाती थी। एक दिन अम्मा को सोते वक्त शदीद हार्ट अटैक हुआ था और वो हार्ट अटैक अम्मा की जान लेकर ही गया था। अम्मा की वफ़ात से पहले हम सब बहनों ने मिलकर इनके साथ हज अदा किया था। एक दिन अम्मा ने हम सब पर अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया और हमने मरने से पहले इनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।